Das Prabhuji, our vice chairman and also very active board member who is dedicated his life here in Balram Desh for so many years in the service of Srila Prabhupada and in the service of Srila Gurudeva. Also, Prabhuji, Mataji, the children, all fully Krishna consciousness, the family, and they are all serving Lord so sincerely. We should learn from them their dedication and their sincerity. So Prabhu is going to give the class today. At the end of the class, we have to pray for His Grace Vaisheshika Prabhuji, who is actually the Acharya of the book distribution. Actually, Prabhupada gave him the instruction and he's doing so nicely. So Venkateshwar Govind Prabhu, thank you very much for reminding. So we will, is actually, Vaisheshika Prabhu is tested positive, so we will pray for him at the end of the class actually. And also tomorrow morning there will be online Mangalarti session will be there like before we used to do. Please attend Mangalarti 5 o'clock and it will be there up to 6:20. Tomorrow the darshan of Prabhupada Charan Abhishekam will be there. The first Abhishekam we are going to do to Srila Prabhupada's Charan. Srila Prabhupada Charan ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So please all of you participate. The link is already sent. And Srimad, at 7:50 we will have the Shringara Arati, followed by 8 o'clock Srimad Bhagavatam. So we'll continue third chapter, 30th shloka, 30th chapter, third canto, 30th chapter, 5th shloka, very, very important shloka for all of us. Please don't miss tomorrow morning class. We are going to speak on attachment, detachment. Very nice topic for us, especially the Grihasthas, especially in Kali Yuga where we are now. Very interesting. Hare Krishna Dandavat Pranam. His Grace Mangaladas Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Hare Krishna. I request focus be on Prabhuji. Yeah, okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachariya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana
व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Go Hare Krishna. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवद्वीप द्वारिका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Shri Shri Guru. Hare Krishna.
हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता चौथे अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आज जो है श्लोक 19 है। आप लोग जो है मेरे पीछे बोलिएगा श्लोक को, या मेरे साथ में दोहरा लीजिएगा। 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा। यस्य यस्य सर्वे सर्वे समारंभा समारंभा काम संकल्प वर्जिताः। काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम् ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितम् बुधाः। तमाहु पंडितम् बुधाः। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात। Hare Krishna Prabhuji, no audio. Yes, Prabhu, no audio, Prabhu. Audio just it was missing. हरे कृष्ण। Yeah, yes, Prabhu, it is coming now. तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। श्रील प्रभुपाद की है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां। कृष्ण चैतन्य एक गोपेश गोपिका कांत राधा सुते देवी प्रणमामि। हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च परितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता के चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं। और इस दिव्य ज्ञान आज जो हम श्लोक में पढ़ा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित, जो यह शब्द है काम संकल्प वर्जिता, कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है,
उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर लिया है। और प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है, कि केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जो है वो कृष्ण भावना व्यक्ति के कार्यकलापों को, पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। तो हम देखेंगे कि अभी 2 श्लोक पहले जो हमारी क्लास हुई, तो 17वें में भगवान ने कहा कि गहना कर्मणो गति ही, मतलब ये जो कर्म का ज्ञान है इसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन, ये भगवान कहते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो उस श्लोक से ये तो हमें समझ में आ गया कि, और हम देखते हैं कि हम में से सबके मन में ये प्रश्न बार बार उठते हैं कि ऐसा क्यों, ये कैसे हो रहा है। जैसा हम जो है सरल भाषा में कहते हैं ना कि क्यों अच्छे लोगों के साथ में बुरा होता है, तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न हमें कहते हैं। तो भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि ये जो है इस कर्म का जो ये है ना, इसको ये बड़ा गहन विषय है, इसको समझ पाना जो है अत्यंत कठिन है। किंतु फिर भी हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। और जब ये हमको बताया, और उसके बाद में जब पिछली बार का जो श्लोक था उसमें फिर भगवान ने कहा कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब देखिए कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो पहले ही कर्म को समझना इतना कठिन है, अब आज की जो बात है कि आप कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो कैसे समझे। तो इसलिए फिर हम प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद फिर हमको बताते हैं कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पे हमको ये स्मरण करना चाहिए कि भगवान ये अर्जुन को जो कह रहे हैं, तो क्यों अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की मनस्थिति क्या है कि अर्जुन सोच रहा है कि सामने मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, मैं युद्ध करूंगा, उनकी हत्या करूंगा, तो यह तो पाप कर्म हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा विचार कर रहा है और इसीलिए फिर भगवान जो है अब ये ज्ञान दे रहे हैं। और ये उदाहरण तो जो अर्जुन की मनस्थिति थी, ये कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई डॉक्टर हो और उस डॉक्टर के पास में मरीज आता है और मरीज को देख के उसकी हालत एकदम खराब है और वो उस पर दया करता है, कहता है अरे इसको मैं इस पे जो है किसी तरह की सर्जरी नहीं करूंगा, इसको तो कष्ट होगा। अब डॉक्टर है, उसका तो कर्म है, उसको तो वो करना ही चाहिए। जैसे अर्जुन को क्षत्रिय है तो उसको अपना वह कर्म करना ही चाहिए, और उससे भी उत्कृष्ट क्या हो जाता है, हायर जिसे हम बोलते हैं कि उससे भी बेहतर क्या हो जाता है कि जब भगवान के लिए करते हैं। तो जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, इसीलिए जो प्रभुपाद हमारे लिए सरल कर देते हैं कि वैसे अगर ये श्लोक हमने प्रभुपाद के तात्पर्य के बिना पढ़ा होता तो कभी समझ नहीं आता कि ये कर्म में अकर्म क्या है। पर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत, और हम सब देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो लोग हैं, प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के वर्तमान शिष्यगण हैं, तो हम उन लोगों का जीवन देखते हैं कि वह जैसा हम आम आदमी का, हम जैसे साधारण पुरुषों का जीवन है, वैसा ही उन लोगों का जीवन भी है। किंतु भेद क्या है कि जो आज के श्लोक में कहा गया कि काम संकल्प वर्जिता है, कि कोई भी सांसारिक भौतिक इच्छा नहीं है, काम संकल्प। इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करते हैं, तो इसीलिए जो ज्ञान की अग्नि है उसमें समस्त जो कर्म है, कर्म फल हैं,
वो सब भस्मसात हो जाते हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। इसीलिए उनके लिए, उन लोगों पे जो कृष्ण भावना भावित हैं, कार्मिक रिएक्शन नहीं होते। जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो सब जो है उनके लिए वो सब नष्ट हो चुके होते हैं। तो हम जो है हमने देखा कि आज के में भगवान इसीलिए ये बता देते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, कि पूर्ण ज्ञान, जो जिस व्यक्ति को का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे ही पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। और कौन कहते हैं? तो कहते हैं कि जो साधु पुरुष, पंडित, तो पंडित जो है, जो बुद्धिमान है, वह ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमान। तो असली ज्ञान जो है यही है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए, किंतु हमारे लिए यह कठिन हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर हम नौकरी करते हैं, तो अगर हमको कल कह दिया जाए कि भाई आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे? तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक वो प्रवृत्ति है, हमें हमारे कार्य का फल चाहिए। तो वो सांसारिक पटल पे होता है, इसलिए उसके साथ में कर्म का सिद्धांत अप्लाई हो जाता है कि तू जो भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करते हैं, वो कर्म करते हुए भी अकर्म करते हैं, जैसे अर्जुन का उदाहरण हो गया। और हम देखते हैं कि यही जो भावना थी, तो ये भावना हमको हमारे आचार्यों से मिली। हमारे को भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है अपनी एक ऊंचे पद पे कार्य करते हुए भी वो अपनी पोजीशन, जो उनको जज थे, उस पे कोई वो नहीं था। उनका मूल जो उनकी सेवा थी वो कृष्ण भावनामृत, पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में थे, और उनकी सारी दृष्टि सिर्फ इसी में रहती थी कि मैं कृष्ण भगवान के प्रचार के प्रसार के लिए क्या कर सकूं। और इसीलिए वो हमें उनका स्मरण होगा कि उनकी जो दिनचर्या थी, उसमें सुबह उठ के वो प्रतिदिन लिखते थे, अपना जप करते थे, और कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करते थे, और उस बीच में अपना वो जो कर्म था वो भी किया करते थे। पर मूल रूप से कोई भी जो वो उनकी ड्यूटी थी, उसको ड्यूटी को किया करते थे, पर बाकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। कुंजी क्या है कि ये भौतिक इच्छाओं का दमन होना चाहिए। हम हमारे को, तो हमारा उदाहरण तो खैर हमें पता ही है कि क्या है, पर हमारे को हमारे आचार्यों से हम समझते हैं कि उन्होंने, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर, जिनका आज जो है तिरोधान दिवस है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पिता से जो संस्कार प्राप्त किए, और उन्होंने कृष्ण भावनामृत के लिए उन्होंने 64 मठ जो स्थापित किए। तो श्रीला प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो आज हमारा इस्कॉन है, और हम ये देखते हैं कि इस्कॉन की सफलता का भी मूल कारण यही है कि इस्कॉन में भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करते हैं, काम संकल्प वर्जिता, अपनी कोई भौतिक इच्छा नहीं। इसीलिए पूरे विश्व में इतने प्रभुपाद के उपस्थिति में 108 मंदिरों की स्थापना हो गई, और कहीं भी जो है सिर्फ एक ही हेतु था कि गुरु और भगवान के आनंद के लिए कार्य करें। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, किसी को कहा कि आप लंदन जाइए, मंदिर खोल दीजिए, उन्होंने वहां जाके एक विदेश स्थान पे जाके कर दिया। किसी शिष्य को कहा तुम मायापुर जाओ और मायापुर जाकर मंदिर बनाओ, कोई मुंबई में चले गए। हरेक ने जैसा निर्देश मिला वैसा कार्य किया, अपनी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। तो देखिए कितने बड़े बड़े काम हुए। और इसका जो स्रोत था, जो प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत जो हमारा इस्कॉन के गठन किया, तो वह उसी प्रकार से किया कि जैसा उन्होंने अपने गुरु महाराज के निर्देशों को अच्छे से समझा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने अपने समय में अब जीबीसी की व्यवस्था करी थी, किंतु उन्होंने उनके जाने के बाद में वो व्यवस्था जो है उन्होंने वो अपना सब निर्देश तो दिए थे, पर वो हो नहीं सका। तो बाद में उन्होंने अपना विचार रख दिया था, अपनी मंतव्य रख दिया था कि भाई जीबीसी के द्वारा ये सब संस्था चलनी चाहिए, पर वो हुआ नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में ही जीबीसी का गठन कर दिया, और जीबीसी को के क्या कार्य होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, सब कुछ जो है उन्होंने पूर्णतः वो सब लिखित में रख दिए थे वो निर्देश। और उसी
उसी की शक्ति हम देखते हैं कि आज भी इस्कॉन हमारी जो इतनी बड़ी संस्था है और वह इतने सुचारू रूप से कार्य करती है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण हमारा अपना जो इस्कॉन बलराम देश है। अगर आप देखिए कि बलराम देवी किसी भी एक व्यक्ति को वेतन नहीं दिया जाता, एकमात्र सेवा, कोई काम संकल्प वर्जित है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और कितने सुचारू रूप से कितने वर्षों से ये भगवान की सेवा हो रही है और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार है। तो यह काम संकल्प वर्जित है। तो यह सब जो है इन्हीं आचार्यों की कृपा से है। तो जैसे हमने कहा कि भाई श्रील प्रभुपाद ने वही उदाहरण जो उनके गुरु महाराज ने उनको निर्देश तो सभी को दिए थे, पर हम समझते ही हैं कि जो वाणी सेवा, वपु सेवा, तो वाणी सेवा शिष्य जो है गुरु के कथनों पर चिंतन मनन करता है और उनके निर्देश को समझ के और फिर पूर्णतः उस पर निर्भर रहता है और उनको अप्लाई करता है। और इसी से ही जो है श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी ये हमारी इस्कॉन संस्था का गठन किया। तो हमारे पास में भी ये इसी तरह का अवसर है। मैं आपको और भी भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर जो है, उन्होंने जब आज उनका तिरोधान दिवस है तो हमको ये स्मरण होता है, तो उन्होंने जाने से पूर्व जब वो उनको ये ज्ञात था कि अब मेरा समय हो गया कि इस भौतिक पृथ्वी पर जो है मेरे अब समय हो गया है इस शरीर का की लीला को पूरा करने का, तो उन्होंने जो है अपने प्रस्थान करने से पूर्व जो है अपने शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि इस जगत में, इस जगत से जो इस जगत से जाने से पहले तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनको निर्देश दिया कि श्री रूप रघुनाथ के चरण कमलों को कभी न छोड़ें, भक्ति सेवा कभी न छोड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सभी निर्देश मूल रूप से अपनी व्यक्तिगत साधना और कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में दृढ़ रहने के निर्देश दिए। और उनका दूसरा निर्देश था कि दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करें और उत्साह से करें और स्वयं को बलिदान करने की भावना से करें। तो हम देखते हैं कि उनका वह निर्देश श्रील प्रभुपाद ने कि वो 70 वर्ष की अवस्था में भी उनका उत्साह उतना ही था जैसे एक 18 वर्ष के नवयुवक का, और पूर्णतः अपने लिए कुछ नहीं। और बलिदान की भावना तो हम जानते ही हैं कि वो तो सर्वस्व जो है अपना सब छोड़ के पूर्णतः सिर्फ भगवान की कृपा पे निर्भर होके वहां गए, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो ऐसे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ये निर्देश थे। और उन्होंने ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहा था कि एक उदाहरण उन्होंने, एक बड़ा व्यक्ति होने से अच्छा इंसान होना श्रेष्ठ है। मैं वैष्णव हूँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ, इस प्रकार का मिथ्या अहंकार ही पतित जीवों के बंधन का मूल कारण है। वह व्यक्ति जो श्री हरि के प्रति शुद्ध भक्ति से प्रबुद्ध है, वह स्वयं को इस भौतिक प्रकृति का स्वामी मानने की कभी कल्पना नहीं करता या एक महान प्रचारक तथा ऐसा ही कोई अन्य व्यक्ति बनने का प्रयास नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को स्वयं को अपने गुरु तथा समस्त वैष्णव जनों के चरण कमलों की नित्य धूल के एक कण के समान केवल तुच्छ एवं महत्वहीन समझना चाहिए। व्यक्ति को अपने अंतर मन में विनम्रता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह मिथ्या अहंकार है कि मैं श्रेष्ठ हूं। हृदय कठोर हो जाता है जहां विनम्रता प्रकट नहीं हो सकती। यहां से विस्तरित होकर मैं अन्यों से श्रेष्ठ हूं, यानी अन्यों को अपने से तुच्छ या हीन समझना, ये आगे अनेकों प्रकार के अपराध में परिवर्तित होकर व्यक्ति को भक्ति से पतित कर देता है। तो देखिए, जो ये मिथ्या अहंकार की मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी ये पदवी है, मैं वाइस चेयरमैन हूं, इत्यादि इत्यादि, या हमारी भौतिक उस पे कि हम ये मैनेजर वो मैनेजर, तो ऐसी जो क्योंकि मिथ्या अहंकार है। हमारा मूल स्वरूप क्या है कि हम तो भगवान के दास हैं। अगर हम उसमें रहेंगे तभी, और फिर तब काम संकल्प वर्जित कि भौतिक इच्छा नहीं होगी और
काम सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के आनंद के लिए करेंगे तो जो है हमको सफलता मिल जाएगी। और उदाहरण हमें जैसे प्रभुपाद का, इसमें मुझे वो भी स्मरण होता है जो कि हरिनाम चिंतामणि पे हिज होलीनेस भानुस्वामी महाराज ने जो हम लोगों को, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि उसमें भी उन्होंने बताया कि जो नाम है, हरिनाम है, वो तो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य की किरण जो है, सूर्य की शक्ति तो, और सूर्य सतत वर्तमान सतत उपलब्ध है, तो उसका रोशनी हमेशा हम सबको उपलब्ध है। किंतु हम जो है, उन्होंने फिर उदाहरण दिया था, हरि नाम तो शुद्ध नाम है और वो वहां पे, पर बीच में हमारी इच्छाओं के फलस्वरूप हम जो है, जो बादल उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, या कोहरा आ जाता है, जिसके कारण सूर्य की किरण नीचे नहीं पहुंचाती। और जिसको हमने, उन्होंने, अगर आपको स्लाइड याद होगी तो उन्होंने कहा कि ये हमारी परिस्थिति क्या है, नाम आभास। तो हम जो हरि नाम ले रहे हैं, तो क्योंकि हम एक वो आभास मात्र है, उसकी छाया मात्र है जो हम ले रहे हैं, वो पूर्ण शक्ति नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं है, जो नाम की जो शक्ति है वो तो पूर्ण है। एक ही नाम लेने से जीव जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान आ जाते हैं। रुक्मणी ने पुकारा भगवान को, एकमात्र इच्छा, सिर्फ भगवान, भौतिक इच्छा नहीं। हमारी समझते हैं क्या कि हम तो संसार भी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर इसलिए भगवान नहीं प्राप्त होते। पर खैर, तो हम बात कर रहे थे कि वो बादल जो है वो समस्या है। और वो बादल हमको फिर उन्होंने बताया था कि बादल का मूल कारण जो है माया। माया, जैसे हम समझते हैं कि माया मतलब हम जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मानकर उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये अज्ञान के वश होती, जो अज्ञान के कारण, जो मूल कारण अज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि हम एक तो हरि नाम के आध्यात्मिक स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है। हम सुनते हैं, हमें पता है, फिर भी हम अपने आप से दृढ़ विश्वास, हमारा वो दृढ़ संकल्प ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है कि हरि नाम कितना शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि ये तो गोलोक धन है, फिर भी हम उस पे विश्वास नहीं करते, हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं है। तो उस कारण से हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। अगर हमें पता है तो हम अगर हरि नाम को ही पकड़ के रखें और उसको पूर्ण जो है, उसका हम आभास है, हम पूर्ण ज्ञान में कि हरि नाम क्या है, तो हमारा नाम आभास, ये सारे बादल छट जाएंगे। हम डायरेक्ट भगवान की शक्ति से हमारा संपर्क होगा और हम आनंद ही आनंद में हो जाएंगे। उसके भी हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। और ये हम, जो मैं परिस्थिति बता रहा हूँ कि हम अपने आपस में नहीं समझते, पर हम जब देखते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्तों के जीवन में देखते हैं क्या उल्लास है, हमेशा आनंद में। तो जो वर्तमान गुरुवृंद हैं, हमेशा आप देखिए, अभी क्योंकि भानुस्वामी महाराज हाल ही में, आप देखिए हमेशा आनंद में। और कैसे वो जब क्लास लेते हैं, बताते हैं, तो उनके वो कितना उल्लास रहता है उनके चेहरे पे, और वो बच्चे की तरह से वो जो है वो हंसते हैं और बोलते हैं, सुंदर सा उनका वो। तो खैर, तो हमारा कारण जो हमारे ये जो बादल हैं, उसका उन्होंने बताया था कि एक तो यही कि हमें हरि नाम के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। दूसरा कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो यह हमको, हम कहते तो हैं, पर हमें अभी तक हमने वो अनुभव नहीं किया, हमारा रियलाइजेशन पूर्ण नहीं, इसलिए अज्ञान आ जाता है। अगर हमें पता है कि वो है, और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, भगवान, हमें भगवान का हमारे साथ में जो संबंध है उसका भी हमें ज्ञान है कि हम उनके अंश हैं, उन्हीं के साथ में हमारा सनातन संबंध है। ये सब जो सांसारिक संबंध है वो सब असली नहीं है, असली है। फिर भी हम जो है इसको, ज्ञान को समझ नहीं, इसीलिए हम अज्ञान में पड़े। हम उनको भूल के हम इस भौतिक संसार, वहीं पे आपको याद होगा फिर उन्होंने परा शक्ति और जीव जो है तटस्थ शक्ति, हमारी चॉइस। हम जो है ये भौतिक जो संसार है, ये तो उनकी नीची शक्ति से हम उसमें पड़ जाते हैं। हम अभी भी यही संसार चाहिए, यही संसार चाहिए, उसके कारण हम फंस गए। और हम उस जो आनंद है, जो मूल आनंद, जो असली आनंद है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। और तीसरा, जब भगवान का ज्ञान और फिर अपना ज्ञान, कि अगर मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं, तो वो अज्ञान चला जाएगा।
ये सारे बादल, ये कोहरे के क्षण, पर ये नहीं छटते हैं क्योंकि हम संसार को पकड़ के बैठे हैं। हम अभी भी अज्ञान में कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमें पूर्ण जो है श्रद्धा नहीं है, उसका ज्ञान ही नहीं है हमें कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं, और उसके वश क्या होता है कि जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि भाई तो उसके कारण ही हमारी वो सब परेशानियां होती हैं कि हम जो अनर्थ, एक दूसरा बात वो यही थी कि ये जो बादल हैं ये अनर्थ हैं हमारे। तो ये जो अनर्थ हैं, तो वो क्या होता है कि उन अनर्थों के कारण और भौतिक संसार की चाह बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम नाम का प्रयास नहीं करते और धीरे धीरे अपना नाम आभास में ही रहते हैं, तो ये बड़ी भारी विपदा है हमारी कि हम जो है भौतिक संसार के प्रति हमारा मोह और बढ़ने लगता है। हम तो क्या देखते हैं अपने में कि और भौतिक सांसारिक इच्छाएं जो है आने लगती है। ये बड़ी भारी समस्या है। तो एक ये होती है, दूसरा नाम यश की इच्छा, और जो है नाम यश की इच्छा, भौतिक संसार की इच्छा, और ये द्वेष, ईर्ष्या। जब हमें अपना ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूं, अभी हमने सुना ना भक्ति कहते हैं नम्रता, नम्रता बहुत आवश्यक है, और बिल्कुल ऐसा मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मिथ्या अहंकार वश हम जो है ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, है ना, कि मैं ये हूं। नहीं तो अगर आत्मा के रूप में हम जैसे प्रभु जी हम कहते हैं एक दूसरे को, माता जी हैं, कि अगर हम उसी स्वरूप में देखें तो कोई मतलब ही नहीं है कि सब भगवान का अंश है, तो कहाँ से द्वेष होगा। तो ये सब हमारे, क्योंकि हम नाम आभास, वो बादल, हम अज्ञान में, इसीलिए ये सारी समस्याएं होती चली जाती। तो इनके कारण हम भगवान के इस नाम को हम करते हैं, ये सब जो भी कुछ करते हैं, पर फिर भी अभी तक आनंद नहीं ले पा रहे हैं। वो प्रभुपाद कहते हैं ना कि बोतल को हम बाहर से चाट, बस बाहर से ही चाट रहे हैं, फिर कहते हैं मैं आनंद नहीं आ रहा। कितने वर्ष हो गए हमको आनंद, क्योंकि हम वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। किंतु हम पे बड़ी भारी कृपा है कि इसका उपाय क्या है, कि हमको कैसे ये प्राप्त हो सकता है। तो उपाय है कि हमको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जो हैं, जो गुरु महाराज जो, और उनका तो हम जीवन देख सकते हैं कि यार हम देखा काम संकल्प वर्जिता, एकमात्र अपने गुरु की, जैसे श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज प्रभुपाद ठाकुर से जो सीखा उसको अप्लाई किया और उनके आनंद के लिए कार्य किया। एक भी क्षण में कितने उदाहरण के प्रभुपाद अपने पे कोई किसी तरह का सारा जो भी उन्होंने प्राप्त किया, वो सब श्रेय जो है वो अपने गुरु को, और ऐसे ही हमारे वर्तमान गुरु वृंद है कि वो उनको देते। तो हम अगर परंपरा में इन ऐसे गुरु की शरण लेंगे तो उसकी शक्ति के द्वारा हमको जो है ये जो उनके निर्देशों के अनुसार जो हमें हमारी साधना होती है, और चूंकि उनकी शक्ति होती है, तो हमें एक तो क्या होता है कि इमीडिएट उनकी शक्ति से कभी कभी वो स्वाद प्राप्त हो जाता है शुद्ध नाम का। तो इसी जो हम आज टिके हुए हैं, वो सब हम इसीलिए टिके हुए हैं कि हमने गुरु महाराज की कृपा से हमें वो आभास तो हुआ है, हमें भगवान पर पूर्ण, क्योंकि हमारा ज्ञान वो नहीं है। तो पर अगर हम उनके निर्देश का पालन करेंगे, और उनका निर्देश क्या है कि भाई नाम 16 माला जप करें, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें, सतोगुण जो पाप कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, उनको ना करें। अगर हम वो फॉलो करेंगे, अगर हम वो करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, ये बादल छंट जाएंगे और नाम का असर होने लग जाएगा, और उससे हमारा प्रयोजन जो है सिद्ध हो जाएगा कि कृष्ण प्रेम, या जिसको हम कहते हैं जो वो स्थिति कि कीर्तन्या सदा हरि, वो वाली परिस्थिति जो है कि भगवान के नाम का हम सतत कीर्तन कर सकेंगे। ऐसा हमको कृपा, अगर हम गुरु की शरण, और जैसे प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के निर्देशों को समझा और अप्लाई किया, अगर हम भी वैसे ही उनके निर्देशों को समझते हैं और उनको अप्लाई करते हैं, तो हमें भी वो प्राप्त होंगे। अब जप पे भी जो हमने भी ये बात करी है, तो उसी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर के ने 3 निर्देश दिए जप के, तो मैं वो पढ़ता हूँ और उसके बाद में इस कथा का समापन करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने
कि 3 quotes on chanting। तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रथम जो है भगवान, और हम अलग अलग प्रकार से ये बात सुनते हैं, तो आप सुनिए कि उनका निर्देश है कि भगवान के नाम को जो है भक्ति से, है ना, पूर्ण भक्ति से, और भक्ति हमें पता है कि श्रील प्रभुपाद हमको समझाते हैं, भक्ति का अर्थ है सेवा। तो अगर हम उस भावना से करेंगे तो उस भावना से ही हमें नाम जप करना चाहिए। टू रिसाइट द नेम ऑफ श्री कृष्णा इज भक्ति। तो ये हमें समझिए वही भक्ति है। दूसरा है चैंट द महामंत्र लाउडली एंड विद अटैचमेंट, दिस विल ड्राइव अवे इनर्शिया, वर्ल्डली इविल्स एंड पेस्ट। तो भगवान के नाम का जप थोड़ा ऊंचे, तेज जो है ऊंची आवाज में करना चाहिए, और बड़े ही आसक्ति के साथ करना चाहिए, अटैचमेंट के साथ में करना चाहिए, कि भगवान के प्रति बहुत आसक्ति के साथ, बहुत जोर से जो है भगवान का नाम पुकारना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्थिति है कि हम कहते हैं ना कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम वहीं पे अटके रह जाते हैं, तो वो स्थिति जो इनर्शिया है वो खत्म हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। और ये भौतिक सांसारिक जो सब समस्याएं हैं, जो सांसारिक इविल्स हैं, वो सब जो है वो सब हट जाएंगे। और तीसरा, बहुत अच्छा तीसरा है कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया, एवर्स टू द लॉर्ड, फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ओनली पेशेंस, ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आर आवर फ्रेंड्स फॉर हरि भजन। कि इस भौतिक संसार में जो समस्त विपदाओं से पूर्ण है, समस्त कष्ट से पूर्ण है, समस्त तरह की चोटें हमको पड़ती हैं, लात पड़ती हैं हमको, पर अगर हम सहन शक्ति से, पेशेंस, नम्रता, ह्यूमिलिटी, और दूसरों को सम्मान से, अमानी ना मान देना, तो अगर हम नम्रता से, सहन शक्ति से और दूसरों को सम्मान देंगे, कि सभी हमारे मित्र हैं, तो फिर हमारा हरि भजन अच्छे से होगा। बोलो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 8:45 का समय है, अभी 1 मिनट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूल रूप से आप सब लोग जो कर रहे हैं, आप सब मेरे गुरु भाई बहन हैं, और सभी भगवान और गुरु महाराज के निर्देशों का बहुत सुंदर पालन कर रहे हैं। कृपया वो करते रहे और मुझे भी जो है इस मार्ग पे लगाए रखें, अपने साथ रखें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।